We have with us Dr. Jawahar Surisetti, who is an eminent psychologist, TEDx speaker, best-selling national author, innovator, and an eminent personality who has written several books in the field of psychology. He is not just a speaker but also an innovator, जिनने life change किया लोगों की नहीं बच्चों की. He has taught to Dharavi students and a lot many people in the world of changing future. Not just in India, he's been to US to study the world of psychology and also to serve the government of US. Please welcome Dr. Jawahar Surisetti with us. We have Dr. Jawahar Surisetti with us. Hello and welcome, sir. Thank you. How are you feeling today? Great. Sir, I would like to begin by asking, how was your journey till date? See, it's a typical rags to riches story. So I was selling idlis by the wayside and not going to school. But the laborers who used to come to my idli stall, they would behave differently. अलग अलग तरीके का behavior होता था. वो किसी की बीवी भाग गई, किसी का बच्चा तंबाकू खा रहा है. Oh हाँ, God. तो इस तरह के परिस्थितियां यूजुअली वी डोंट सी दिस इन मिडिल क्लास फैमिलीज. तो मुझे लगता था क्यों इस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं. एट एज 8 आई स्टार्टेड गेटिंग फैसिनेटेड बाय हाउ पीपल वर बिहेविंग एंड दैट वाज द सीड of why I did psychology. Okay. So it was like your dream career to do, or you have changed from a certain path and then you chose to do psychology? No, since I was selling idlis और 10th 12th मैंने प्राइवेटली दे के पास कर लिया. Okay. तो फॉर एन इडली सेलर द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज टू गो एंड डू होटल मैनेजमेंट. Okay. तो मुझे और कुछ आता नहीं था. Yeah. हाँ, तो इसलिए आई डिड होटल मैनेजमेंट. बट क्योंकि समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड दैट साइकोलॉजी वाज देयर, Huh. so I thought I should simultaneously do something which I wanted to do. Okay. So then you choose psychology as Also, your yeah. career and passion both. Yes, yes. Okay. So it's a personal question to ask. Did your parents supported to do hotel management in the first place and then shift towards a psychology career, which is not stable as people say? See, there are two things. One, because we were fending for the family, Yeah. so उसमें कोई ऑप्शन नहीं था. I had to do it. Okay. And what happened later was कि चूंकि दिमाग में था कि साइकोलॉजी करना है, I entered hotels, started working for hotels, looked at various type of guests who used to come to 5-star hotels. Yeah. और वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते थे, right from विजय मल्ल्या to के मोदी to somebody who I don't know. अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है. तो आई थॉट कि मुझे कहीं ना कहीं वो कचोट रहा है कि आई शुड हैव डन साइकोलॉजी. एंड देन थिंग्स हैपेंड इन सच ए वे कि मुझे जो सुभाष चंद्रा है जी टीवी वाले जी. उन्होंने, मैं होटल में काम करता था तो वो रात को आते थे होटल में टू हैव अ स्कॉच इन ताजमहल मुंबई. तो हम लोग रात को, मैं ड्यूटी से ऑफ होता था, हम रात को बैठ के बात करते थे कुछ. ही वॉज नॉट जी टीवी का मालिक उस दैट टाइम. तो हम लोग बात करते थे, कुछ भी बात करते थे. एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड एसएल वर्ल्ड एंड जी, ही सेड आई नीड यू. तो मैं होटल्स छोड़ के वहां आ गया उनके पास. एंड आई वर्क फॉर 12 years in the entertainment industry. That's a long span of time. A long span of time. And we started Z, one of the first 6 employees of Z, till Z reached the peak. मैं उनके साथ था, वाइस प्रेसिडेंट था मैं. एंड देन एंटरटेनमेंट के बाद मैं फिर सोचा कि जो मेरा एक्चुअल एम था ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी वो फुलफिल नहीं हो रहा था. हाँ, माई चिल्ड्रन वर ग्रोइंग. आई रोट समवेयर कि जी ऐसा था कि हम सवेरे 7:40 को मैं जाता था, रात को 2 बजे आता था, क्योंकि हांगकांग से अपलिंक होता था उस टाइम. अच्छा. प्रोग्रामिंग. तो मैं अपने बच्चों को हाइट में नहीं जानता था, लेंथ में जानता था. जब मैं जा रहा था वो सो रहे थे, जब मैं आता था वो सो रहे थे. तो आई डोंट नो द हाइट ऑफ माई चिल्ड्रन, आई नो द लेंथ ऑफ माई चिल्ड्रन, ऐसा लिखता था मैं. There was an imbalance of time. तो आई थॉट आई शुड नॉट रन आफ्टर मनी बट गो फॉर समथिंग.
we also know that you have studied from the University of Washington. So वो सर कैसे शुरुआत हुई उस चीज की? मैं जब जी में काम करता था जी. तो मेरे पास धारावी के कुछ बच्चों का एक ग्रुप था, करीब 100. अच्छा. आई यूज टू लिव इन बैंड्रा. हाँ, Okay. तो मैं धारावी पास पढ़ता था, तो आई यूज टू गो एंड टीच देम इन द इवनिंग, जब भी टाइम मिलता था, एंड दे यूज टू लव. वो 10 लोगों से शुरू होके 100 तक पहुंचा, 104 थे आखिरी में. तो हम लोग गाने गाते थे, अंताक्षरी खेलते थे और पढ़ते थे. तो किसी यूनाइटेड नेशंस के बंदे ने मुझे देख लिया था पढ़ाते हुए. Okay. सो ही सेड कि इसको और लार्जर पर्सपेक्टिव देना चाहिए. सो ही सेड व्हाई डोंट यू डू अ पीएचडी इन साइकोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन यूएस, एंड देन यू कैन हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ यूएस फॉर सम टाइम. तो ये इस वजह से मुझे स्पॉन्सर्ड पीएचडी मिला बाय यूएन. बट उसमें ये था कि 19 दिन आपको हर साल यूएस को देना पड़ेगा for the children of US. For the children of US. Yes. Okay. So having said that, I think it was written in the destiny of yours, unplanned. Yes, this was unplanned. This was unplanned. So you have conducted 1,432 lectures, seminars, and workshops in not just 1, 2, 20, 30, 60, but 76 countries, which is a huge number. So what are some of the common challenges you observed in global education and well-being? See, across the world, the challenges are almost the same. हाँ, यानी अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, तो द चैलेंजेस आर ऑलमोस्ट द सेम. एक तो है, यूथ डज नॉट वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स. हाँ, अग्रीड. हाँ, एंड दे, उनको कोफ्त है, दे डोंट लाइक दिस, बट दे डिमांड कि ये पार्टी ऐसा कर रही है, ऐसा हमारे लिए ये होना चाहिए, होना चाहिए. तो मेरा उनसे कहना ये था कि आप जब तक गवर्नेंस में नहीं आओगे, हाँ, यू कांट फुलफिल योर डिजायर्स. अभी क्या है, एवरेज एज ऑफ पार्लियामेंट अगर 57 है इंडिया का, तो पॉलिसी मेकर जो है, और एवरेज एज ऑफ इंडिया इज 35. राइट. तो एवरेज आदमी के लिए हम पॉलिसीज नहीं बना पा रहे हैं लोकसभा में, क्योंकि आप समझते ही नहीं हो कि यूथ क्या चाहता है. तो अंटिल द यूथ कम्स इनटू गवर्नेंस लीडरशिप पोजीशंस, मुझे लगता है कि चैलेंज दुनिया में यही रहेगा कि करप्शन इश्यू है, लड़ाइयां होती रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट इज एन इश्यू, रिलीजन इज एन इश्यू. जब तक यूथ सामने नहीं आएगा नहीं होगा. हम लोग यही सोचते रहते हैं. सो यू बिलीव कि एक यूथ की एक अपनी आवाज है और गवर्नेंस की एक अपनी आवाज है जो पैरेलल है, और दे आर नॉट मीटिंग एट सम पॉइंट, राइट? यस, यस. सो योर सेइंग इज कि दे शुड कम इन द गवर्नेंस फर्स्ट एंड देन डिसाइड कि आगे क्या करना चाहिए. ये जरूरी है कि है अगर आप आवाज उठा रहे हो तो आप एक एक्टिविस्ट हो. करेक्ट. बट इफ अगर आप आवाज उठा रहे हो और करने की क्षमता रखते हो, देन यू आर अ लीडर. ट्रू, बट नॉट एवरीबॉडी कैन बिकम अ लीडर. वी डोंट वांट एवरीबॉडी. हाँ. A group of young boys and girls should take up governance. Right. एंड इसकी एक छोटी सी पहल दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में भी होती है, टू स्पीक अप फॉर देयर वॉइसेस, टू नो कि एग्जैक्टली कंट्री में क्या चल रहा है, एंड सही और गलत में पहचान करना. सो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट. नो, दिस हैज बीन हैपनिंग. मॉडल यूनाइटेड नेशंस एटसेट्रा तक बच्चे लोग रहते हैं. ओके. इवन आप देखेंगे कि यूथ लीडर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी हैं, जेएनयू में भी हैं, सब जगह हैं, एंड दे आर पार्टी ड्रिवन. जी. बट हम चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे यूथ जो पार्टी ड्रिवन ना हो, इश्यू ड्रिवन हो. हाँ, वो सही को सही और गलत को गलत बता पाए कि कोई भी पार्टी गलत कर रही है, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा. हाँ, that is the kind of voices that you need. Correct. That's very needed for the society and the government. Sir, with the launch of your app, Apprison, how do you envision the future of digital well-being, and what steps can individual take to combat mobile addiction? मेरी एक किताब आ रही है इसी पे, जिसका नाम एप्रिजन है. अच्छा. हाँ, it should be released any time next month. मुझे दिखता है एज ए फ्यूचरिस्ट, व्हाट आई सी इज कि लॉकर्स अभी आपको जो मिलते हैं जी, मैं मोबाइल कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको एक लॉक एंड की में डाल दूंगा ताकि जबरदस्ती कंट्रोल हो. यू विल फाइंड लॉकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे आप मोबाइल से दूर रहना चाहते हो. एक, यू विल ऑल्सो सी डिजिटल एडिक्शन मेडिकल स्पेशलिस्ट, यानी डॉक्टर्स जो कि इसी में स्पेशलाइज करेंगे कि आप
डिजिटल एडिक्शन है, In जैसे the आप future? हाँ इन फ्यूचर, यानी बोन स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये सब चीजें जो हो गई, Right. लेकिन आपको डिजिटल एडिक्शन स्पेशलिस्ट निकलेंगे। तीसरा है कि जिस कदर एजुकेशन और स्किल्स वगैरह सब डिजिटल पे आ गए हैं, अच्छी चीज है, सो वी शुड नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। Yeah. टेक्नोलॉजी इज गुड, लेकिन उसका कितना उपयोग करना है, दैट लिमिटिंग फैक्टर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। We'll have to decide at Yes. some point where we need to stop using Yes, it. yes. So, was there a change in a shift of a society of India and the society of US? Do you see a difference of people using phones? No, No, it's no. same. It's the same, and Indians have taken to phone. यानी internet usage of India is much higher than US. हाँ, that's what I Because wanted to yes, know. Yeah. but मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बचने की प्रक्रिया भी है। We have a saving grace, and that saving grace is that we have strong relationships in the family. Correct. That saves us from a lot of these digital issues. हाँ, बच्चा डिजिटल एडिक्टेड है, बच्चा थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न होके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना स्ट्रांग है फैमिली बॉन्ड कि आप उसको सुपरसीड नहीं कर पाएंगे। मतलब जो समय आप फोन्स में दे रहे हो, एप्स पे दे रहे हो, वो समय अगर आप शिफ्ट करके फैमिलीज में दोगे तो वो एडिक्शन अपने आप कम हो जाएगा। मतलब यू डोंट हैव टू फोर्स कि नहीं यूज करना है, बट वो इवेंचुअली शिफ्ट हो जाएगा आपका टाइम फ्रॉम फोन टू फैमिली। यस, ये भी एक बात है कि परिवार के रिश्ते अगर स्ट्रांग हो ना, तो आप ये शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रांग ना हो तो उसको कोई और चीज चाहिए रहेगी, चाहे दोस्त हो चाहे डिजिटल डिवाइसेस हो। Agreed. Sir, you also mentioned about your book, so I would like to know what all books have you written and उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं ये। हाँ. जैसे 2047 फिक्शनल स्टोरीज ऑफ फ्यूचर इंडिया करके एक है जी. कि 2047 में इंडिया कैसा दिखेगा, हेल्थ, साइंस, ये मैंने एजुकेशन, ये मैंने कहानियों के 20 स्टोरीज आर देयर इन दैट बुक। ओके. हाँ, एंड इट इज इन द मार्केट नाउ। वो एक फ्यूचरिस्टिक बुक है। टीन फैक्टर एक बेस्ट सेलर है मेरे लिए। दिस इज योर सेकंड बुक? दिस इज माय सेकंड बुक। ओके. द टीन फैक्टर इज ए नया जॉनरा है। दिस जॉनरा इज सेल्फ हेल्प फिक्शन, दो चीजों को मिला के है। ओके. हाँ, यानी कि कॉर्पोरेट में रिवोल्यूशनरी इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या है, मानते हैं कि बाल सफेद हैं तो एक्सपीरियंस्ड है। हाँ. लेकिन आज का समय ऐसा है कि उसमें वो कहानी है कि वो एक साइबर अटैक आ जाता है एक बड़ी कंपनी पे। ओके. तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को उठा के बोर्ड रूम में डाल देते हैं वो कि इससे लड़ते हैं करके, एंड दे फाइट एंड विन। तो यंग माइंड्स अगर कॉर्पोरेट में आए तो किस तरह से पूरा कॉर्पोरेट चेंज हो जाएगा, ये है वो किताब। और उसमें इट्स ए सेल्फ हेल्प बुक। वाओ, यू हैव गिवन अ डिफरेंट विजन टू योर बुक, and I believe everybody who will read it, they will find a different perspective of living their life, especially in a corporate culture. Yes, I the guess teen factor, classroom to boardroom ऐसा कुछ नाम है। अच्छा. एंड आप लाइक बुक्स लिखने का आपका शुरुआत से ही शौक था कि आई वुड लाइक टू रीड अ बुक एंड देन राइट अ बुक इवेंचुअली, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ यू थॉट कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अचीव किया है, व्हाई नॉट टू पेन इट डाउन इन अ फॉर्म ऑफ बुक एंड लेट द वर्ल्ड रीड माय विजन? नहीं, मेरा एक थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा वेवर्ड है दुनिया के हिसाब से। ओके. Why I am saying this is क्योंकि स्कूल में जाने से ना थोड़ा सा सिंगल माइंडेड थॉट्स आते हैं कि चार दीवारी में हम जो सीखते हैं ये चीजें आती है। चूंकि गया नहीं हूं मैं, तो मेरे दिमाग में कुछ भी आता है। हाँ, तो मैं उसको लिखता हूँ। और इसके पीछे एक मैडम है, जो मैं कलकत्ता गया था होटल मैनेजमेंट करने जी। तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, तो बस में मैं चढ़ा उस दिन। फेल व्हाट इज योर नेम पूछे तो मुझे पता नहीं क्लास में क्या हुआ। ये सर कब की बात है? In 1984. And how old were you? I was 18. अच्छा, 18 में she asked and then you could not reply. I couldn't reply. स्कूल की पढ़ाई नहीं हुई तो प्रॉब्लम था। तो वहां पे बच्चे लोग चिढ़ा रहे थे मुझे कि व्हाट इज योर नेम का जवाब नहीं दे पाए बस में। तो एक मैडम उठी, छोटे से बाल थे, गोरी सी थी, और उन्होंने डांटा उन लोग। अंग्रेजी नहीं आती तो क्या है, प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम सीखना चाहते हो क्या इंग्लिश? तो मैंने बोला जरूर सीखूंगा। तो शी यूज्ड टू कॉल मी टू पार्क स्ट्रीट। हाँ, और हर रोज 5 वर्ड्स देती थी, उसको आप बोलती थी सेंटेंस में बनाओ, और मैं अगले दिन सेंटेंस बनाता तो ब्रेड बटर मिलता था मुझे।
Wow. And that lady, Florinda teacher, is the reason why I am able to speak in 76 countries in English. That is the lady. मैं आज किताबें लिखता हूँ तो वो महिला है. हाँ, मैं आज कहीं बोल रहा हूँ तो वो महिला है. She knows about your. या अभी मैं मिल के आया उनसे. Yeah. I lost her in between. Okay. But The touch. हाँ. Okay. But at age 43, I realized कि मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ. Of course. She was a backbone of your तो career. मेरे स्पीकिंग ट्री कॉलम में आप देखेंगे 1 month 2 pilgrimages है. एक मेरी माँ जो यानी हमने परिवार को जो संभाला था, इडली बना के देती थी, मैं बेचता था, और दूसरी फ्लोरिंडा टीचर. So I really like the shift कि कैसे उनने आपको पढ़ाया एंड फिर आपने उस चीज को आगे ले जाके, दो यू डिड नॉट वांटेड टू डू इट एज अ प्रोफेशन, बट एक दिल से एक इच्छा होती है ना करने की चीजों को, सो आपने धारावी की बच्चों को पढ़ाया. सो वेल स्क्रिप्टेड, आई मीन ये चीज लिखी थी आपके किस्मत में तो वो हुई. इंटरेस्टिंग. Sir, I would also like to know कि how do you see emerging technologies impacting health, mental, physical, both? See, mental health is a issue जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक अलग चैप्टर है. मेंटल हेल्थ. वैसे ही टेक्नोलॉजी एक अलग चैप्टर है. हाँ, टेक्नोलॉजी इज गुड व्हेन यूज्ड इन लिमिटेड पोर्शंस. बट मेंटल हेल्थ इज ए बिगर इशू. उसका कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है. उसका कारण है कि फैमिली टाइम कम होने की वजह से, बच्चों के दोनों पेरेंट्स काम भी कर रहे होंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया है कि अच्छा मैं टाइम कम दे पा रहा हूं तो मैं इसको लाड़ दूंगा बच्चे को. तो या तो मोबाइल दे देते हैं, टीवी दे देते हैं, इंटरनेट दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसी सुविधाएं देते हैं जो उनकी कमी को पूरा कर सके. इस वजह से क्या हो गया, बच्चे जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं. दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेक फेलियर्स. हाँ, सो यू विल सी लॉट ऑफ डिप्रेशन, lot of mental health issues, lot of suicides, and all these happening. There is no resilience in the youth. ये बड़ा mental health issue है. सर, जो यूथ हमारी सुन रही है, the audience जो है, I think they can relate with each of your sentences because हर किसी की फैमिली वैसी कोपिंग नहीं होती है कि आप जाके अपने पेरेंट्स से बात कर सको. कोई नहीं समझ पाते, कुछ समझ जाते हैं. फॉर दोज लाइक चिल्ड्रन जिनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है या फिर उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन यूथ के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि हाउ शुड दे ट्रीट द मेंटल हेल्थ, एंड अगर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं तो स्टॉप कैसे करें? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें दो चीजें हैं. एक तो है फैमिली सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. उससे बड़ा कोई सपोर्ट होता ही नहीं है. तो पेरेंट्स अगर टाइम भी कम देंगे लेकिन क्वालिटी टाइम देंगे, तो इट विल लीड टू लेस मेंटल हेल्थ इश्यूज. जैसे मैं दोस्त बनाता हूँ अपने बेटे को. हाँ, तो हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं इन एट आवर होम. मेरे 2 लड़के हैं. ओके. बोथ ऑफ देम आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड. हाउ ओल्ड दे आर? One is done is IIM, other is a artificial intelligence from Purdue. No doubt. तो दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो हम क्या खेलते थे पहले, हम प्रेशर नहीं डालते थे. हम एडहॉक एक अरेंजमेंट करते थे कि भाई तेरा कितना परसेंटेज आएगा, डैड 94 आएगा. ओके, तू डिसाइड किया, कोई बात नहीं, यू हैव टू अचीव इट. मैं डेली नहीं बोलूंगा तू पढ़ 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 नहीं बोलूंगा. दे यूज्ड टू अचीव. एक फिर हम लोग घर की जिम्मेदारियां भी उनके साथ बांटते थे. उनको पता चले कि पैसे कम है, ज्यादा है, जो भी है. तो मंत्रालय बनाते थे हम लोग. तो मैं प्राइम मिनिस्टर, वाइफ इज होम मिनिस्टर, बेटा, इनके मंत्रालय चेंज होते थे बच्चों के. अच्छा. तो एक क्या होता था, जैसे हम हर 6 महीने में एक टूर मार लेते हैं. एनीवेयर वी गो फॉर अ टूर. इट्स ए एजुकेशनल टूर इन आवर फैमिली. तो ताजमहल फोटो में देखने से अच्छा मैं छू के आऊंगा, सूंघ के आऊंगा. राइट. हाँ, तो समथिंग लाइक दैट. तो उसका बड़े लड़के को मैंने दे दिया टूरिज्म मिनिस्टर को. वो बजट बनाता है कि 1 लाख रुपए हैं, 4 लोग जाएंगे, 7 दिन रहेंगे, होटल, खाना पीना, आना जाना, सब चीज देखो. अगर मान लीजिए पैसे कम पड़ते हैं तो मैं पैसे बढ़ाता नहीं हूँ. मैं बोलता हूँ कि भाई एक फ्लाइट के बदले ट्रेन कर दो, एडजस्ट कर लो. हाँ, कैसे एडजस्ट करना है देख लो. या खाना एक छोटी जगह खाएंगे, ढाबे में खाएंगे. तो दे लर्न इट चाइल्ड अप कि हम परिवार के जिम्मेदार भाग हैं. तो जिम्मेदारी से भागना नहीं देना चाहिए बच्चों को. पहली चीज पेरेंट्स को. मेंटल हेल्थ इश्यूज कम
बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट शेयर्ड विद द चिल्ड्रन। कि मेरे पैसे की तकलीफ है तो बताओ ना बच्चे को। हाँ, आप उसके पीएफ से लोन लेके मोटरसाइकिल दे देते हो, फोन दे देते हो, और बाद में वो मांगने की आदत हो जाती है, उसको वो डिप्रेशन में चले जाता है जब नहीं देते हो आप। तो ये प्रॉब्लम शुरुआत से ही सुलझाने हाँ, की सुलझाने की जरूरत जरूरत है। कॉन्ट्ररी टू दिस, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने सुना है कि फैमिली में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं कि नहीं नहीं आप अंदर जाओ, हम बड़े बात कर लेंगे, सुलझा लेंगे। आई थिंक कि आपका जो ओपिनियन है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, एंड जो सुन रहे होंगे, जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे, अगर आप चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में देन प्लीज डू इट। अपने घर से शुरुआत करिए, एंड आई गेस कि आगे आने वाली जनरेशन, आई थिंक अभी की तो बीत ही रही है, बट आगे आने वाली जनरेशन को बहुत हेल्प होगा इफ यू अप्लाई दिस एट योर होम। सर, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, एंड मेरे पास कुछ काम नहीं अदर देन माय स्टडीज एंड वर्क। सो व्हेन आई डोंट टॉक टू माय मदर, जब मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करती हूँ या अपने पापा से बात नहीं करती हूँ, सो आई फील कुछ खाली खाली सा लग रहा है, एंड देन आई इन्वेस्ट माय टाइम इन माय फोन एंड लैपटॉप एंड टॉकिंग बुलशिट लाइक। सो बट जिस मोमेंट मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ, आई फील कि हाँ, अब अच्छा लग रहा है, नाउ इट्स फीलिंग बेटर, एंड नाउ आई कैन invest my time in a productive way. So I completely agree कि parents का involvement life में होना is very important. Talking about psychological shift, how do you anticipate as we move towards technological generation? See, one I am anticipating that कि हम समझ जाएंगे जी हाँ कि टेक्नोलॉजी को कितना यूज करना है। जी हाँ, उसका कारण क्या है? अभी मैं मान लीजिए मोबाइल है, हाँ, मैं रात को सोने से पहले तक मोबाइल देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि जो ब्लू रेस आ रही है मेरे मोबाइल से, ये रेस मेरे 1 घंटे तक नींद खराब करेगी। हाँ, दे इफेक्ट द बैक साइड ऑफ योर आईज। और वो इमेजेस जो है, आप आंख भी बंद कर लेते हैं ना, तो उसके बाद भी 1 घंटे तक रहती है, तो नींद नहीं आएगी आपको। तो मेरी इच्छा है, और हम समझ जाएंगे, दिस विल लर्न इन फ्यूचर। जब एक्सेस हो जाता है ना, तो हम समझते हैं चीज, और एक्सेस हो जाएगा तब तक। फ्यूचर में हम समझ जाएंगे कि 1 घंटा पहले मुझे फोन बंद करके या दूर रख देना चाहिए सोने से पहले। हाँ, ऐसे ही जो बच्चों को हम मोबाइल पे दिखाते हैं, उसको हम बड़ा कर, इफ आई कैन स्क्रीन मिररिंग करते हैं ना लैपटॉप में, हाँ, लैपटॉप में, टीवी में दिखाइए, मोबाइल में मत दिखाइए। हाँ, और 4 फीट की दूरी रखेंगे ना, ये छोटी छोटी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। हाँ, टेक्नोलॉजी का यूज, हाउ टू यूज इट एंड स्टिल नॉट गेट अफेक्टेड, ये हम समझ जाएंगे। दीज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड विल लर्न। अग्री, वेल सेड सर। आपने जब बताया कि फोन 1 घंटे पहले नहीं यूज करना है, सो उसका ऑल्टरनेटिव भी बता दीजिए, बिकॉज आई थिंक 99% ऑफ इंडियंस आई गेस फोन चला के सोती है, उन्हें नींद नहीं आती जब तक वो फोन नहीं चलाते, और जब वो फोन चलाते हैं, चलाते चलाते दे गो इन अ जोन की अब आ रही है नींद। सो इफ यू कैन शेयर एन ऑल्टरनेटिव विद देम, दैट वुड बी रियली दैट्स अ प्लेसिबो। ओके। हाँ, मैं अगर अपने दिमाग में कंडीशन कर लेता हूँ कि चाय पीऊंगा नहीं तो आई विल नॉट बी एबल टू शिट, ये प्लेसिबो है। हाँ, जबकि चाय नहीं है वो, मैं गर्म पानी भी पीऊंगा तो हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं चाय पी, ये आदत बना चुका हूँ। सो वी हैव मेड सम प्लेसिबोस इन आवर माइंड कि मुझे ये करने से ही ये होगा। हाँ, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, आंखों में प्रॉब्लम है, आप कान में लगा के सुन रहे हैं ना, यानी ऑडियो बुक्स आर ओके। हाँ, आंखों में से जो ब्लू रेज जाएगा, इट इज हार्मफुल। तो या तो आर डी बर्मन के गाने सुनिए, जैसे मैं सुनता हूँ, आई एम ओके विद दैट। हाँ, आपके कान से असर नहीं हो रहा है, दिमाग के पीछे। अच्छा, आपकी आंखों से हो रहा है, वो लाइट इज डेंजरस। हाँ, आगे फोन चल के वो ब्लू रेस को भी खत्म करने का चल रहा है अभी। हाँ, दैट इज गोइंग टू हैपन, बट टिल देन यू शुड बी इन सेफ हैंड्स। हाँ, बिकॉज जब तक वो टेक्नोलॉजी आएगी तब तक तो योर आईज विल बी गॉन। लाइक एआई इज क्वाइट इन ट्रेंड, so I would like to know what are the ethical considerations when using AI in psychological practices. So there are two things. अभी पीएससी के एग्जाम में, जी, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, एआई चैट जीपीटी को यूज करके, जी, वो 10 बच्चों को पेपर लिखा रहे थे, पकड़े गए। राइट। एंड दिस हैपेंड दिस वाज डन बाय एन ऑफिसर हिमसेल्फ, जो बाहर बैठ के बच्चों को ये चीजें कर रहे थे। हाँ, तो ये वाज इंजीनियर। ओके। तो
हर चीज के दो पहलू होंगे, ये हम जानते हैं, Yeah, there will be a pros and a cons. एंड कॉन. सो आई थिंक एआई के एथिकल कंडीशंस में ये है कि जैसे अमेजोन ने अभी कर दिया है कि आपने कोई भी लेख लिखा है जिसमें एआई ज्यादा मात्रा में है का यूज दिखता है तो उसको बैन कर देते हैं. Okay. सिमिलरली रिसर्च पेपर्स में हम लोगों ने एंटी एआई टूल लगा दिया है, तो वी आर यूजिंग इट. Okay. बट आई एम सेइंग कि एआई इसलिए गलत नहीं है, आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट डालोगे उसमें उतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा. तो आपके प्रॉम्प्ट डालने की क्षमता जो है शुड बी गुड, वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे. एंड प्रॉम्प्ट इज द की. हाँ, अगर प्रॉम्प्ट अच्छा, यानी सोना डालो और ज्वेलरी निकालो, हाँ डिजाइन मेरा होगा. yes. तो सोना तो कोई भी डाल देगा, लेकिन डिजाइन मेरा होगा तो डिजाइन अच्छा निकलेगा. हाँ, तो यू विल हैव टू यूज एआई वेरी क्रिएटिवली और उसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है. So how you write a prompt is more important. Prompt engineering is a good career option. Okay. I think we are done with today's podcast. Sir, I would like to wrap up with today's session by asking psychology as a career, how safe this option is and how good this option is for our coming generation. पहले ये मिथ था कि साइकोलॉजी कर लो तो सिर्फ पागलों के लिए है, फर्स्ट. सेकंड ये कि इसके करियर ऑप्शंस नहीं. हाँ. बट लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. आज की तारीख में इट्स राइट अप देयर इन द वर्ल्ड. हाँ, मैंने आज देखा है कि आपके इधर अशोका यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में मारामारी रहती है साइकोलॉजी के लिए. हाँ, नॉट बिकॉज कि सिविल सर्विसेज में एक अच्छा ऑप्शन है वो, बट उसके करियर ऑप्शंस इसलिए कि गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि हर स्कूल कॉलेज में एक काउंसलर होना चाहिए. Okay. तो कहां से लाओगे इतने काउंसलर्स? यू नीड. तो इट्स ए वेरी गुड करियर ऑप्शन, नॉट जस्ट फॉर द काउंसलर, इट्स ए एक्सीलेंट करियर ऑप्शन फॉर एन एंटरप्रेन्योर आल्सो. मेंटल हेल्थ के एप्स हर रोज एक नया बन जाता है. राइट. हाँ, तो आई थिंक इट्स ए गुड करियर ऑप्शन. यू शुड नॉट लीव इट एंड यू शुड परस्यू मोर एंड मोर. यस, यस. Well said, sir. It was such an interesting and intellectual session. I got to learn personally a lot from you, and my audience, the youth, those who are watching, I think उन्हें एक insight मिला होगा कि AI क्या है, psychology क्या है, and human relations क्या है, and how to balance all three of them together in a lifestyle to live a better life. Thank you so much. Thank you, sir, for coming up, and we are glad to have you today. Thank you. Thank you.